بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ ثالث بحث بدیع میں سے سبق نمبر 10 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت القول بالموجب سے لے کر السلب والایجاب تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو بیان کیا جائے گا وہ یہ ہیں۔ القول بالموجب کی وضاحت کی جائے گی کہ محسنات معنویہ میں سے القول بالموجب کیا چیز ہے، اس کی تعریف اور مثالیں بیان کی جائے گی۔ نمبر 2، ائتلاف اللفظ مع المعنی کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 3، تفریع اور استتباع کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ السابع والعشرون القول بالموجب، محسنات معنویہ میں سے 27ویں نمبر پر ہے قول بالموجب۔ القول بالموجب نوعان، قول بالموجب کی دو قسمیں ہیں۔ ان اقسام کے ذیل میں قول بالموجب کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ الاول، پہلی قسم جو ہے یہ ہے کہ ان یقع فی کلام الغیر اثبات صفت لشیء و ترتیب حکم علیہا، کہ غیر دوسرے کے کلام میں واقع ہو کسی بھی صفت کو ثابت کرنا کسی چیز کے لیے، اور حکم موقوف ہو اس صفت کے ہونے پر، کہ حکم تب ہے جب صفت ہے۔ یہ علیہا کی ضمیر طلاب کرام عزیز صفت کی جانب جا رہی ہے، اور یہ فینتقل السامع تلک صفت الی غیر ذلک الشیء، پھر سننے والا اس صفت کو جو کسی چیز کے لیے ثابت ہوئی ہے، پھر اس کے اوپر حکم آیا ہے، اس صفت کو منتقل کرتا ہے اس چیز کے علاوہ کی جانب۔ یعنی ایک چیز کے لیے صفت ثابت ہوئی، پھر وہی چیز، وہ جس چیز کے لیے ثابت ہوئی ہے وہ چیز نہیں بلکہ اس چیز والی جو صفت ہے اس دوسری چیز کے لیے منتقل کرتا ہے، من غیر تعرض لثبوت ذلک الحکم لہ او انتفاعہ عنہ، بغیر اس کے کہ وہ سامع بیان کرے کہ حکم اس کے لیے ثابت ہے یا حکم کی اس سے نفی ہے۔ یہ بیان نہیں کیا جائے، یہ اپنے کلام کے اندر یا انتقال کے اندر بیان نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ فلاں چیز والی صفت اس کے لیے بھی ثابت ہے، اس کے لیے بھی ہے، اس کو انتقال دیتا ہے۔ اب پھر ثابت ہے یا نہیں ہے، ثبوت ہے یا نفی ہے، یہ بیان نہیں کرتا، جس طریقے سے اس آیہ گرامی میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ قول تعالیٰ، جس طرح ارشاد گرامی ہے، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم شہر کی جانب لوٹیں گے، وطن کی جانب لوٹیں گے، لَيُخْرَجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ضرور بضرور ہمیں عزت والے لوگ تو نکال لیں گے عزت والے لوگ اس مدینہ سے ان کو جو مغلوب ہیں، جو ذلیل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک خداوند متعال کے لیے ہی عزت ہے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ یہ سورہ منافقون۔ اب اس میں کیا ہوا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ اس آیت میں فالمنافقون ارادوا بالعز انفسهم، منافقون نے اعزہ کہ اعزہ جو ہیں خارج کریں گے اس مدینہ سے اذلہ کو، اعزہ سے انہوں نے خود مراد لیا ہے کہ ہم ہیں وہ، جبکہ بالاذل المؤمنین، جبکہ منافقون نے اذلہ سے جو مراد لی وہ مومنین ہیں، کہ وہ مومنین جو ذلیل ہیں۔ ورتبوا علی ذلک الاخراج من المدینۃ، پھر اسی پر اس خارج ہونے پر یعنی اس شہر سے نکلنے پر موقوف کیا ہے انہوں نے صفت کو، فنقلت صفت العزت للمؤمنین، نتیجے میں انہوں نے عزت والی صفت کو مومنین کے لیے منتقل کیا۔ وابقیت صفت ذلت للمنافقین، پھر ذلت والی جو صفت ہے وہ منافقین کے لیے باقی رہ گئی۔ من غیر تعرض
लिसुबूत हुक्म अल-इखराज लिलमुत्तसिफीन बिसिफत अल-इज्जत वला लिन्नफीह अन्हु, बगैर इसके के बयान करे कि जो मदीने से खारिज होने वाला हुक्म है साबित है उन लोगों के लिए जो इज्जत के साथ मुत्तसिफ हैं यानी मोमिनीन, यानी ये भी बयान नहीं हुआ। और ना ही ये बयान हुआ कि हुक्म इखराज की नफी है अनहुम, उन अफरा से जो मुत्तसिफ हैं, यानी सबूत और नफी को बयान नहीं किया गया। ये पहली किस्म से तुलाब इकराम है। दूसरी किस्म वसानी हमलो लफ्ज़िन वक़अ फ़ी कलामिल ग़ैर अला ख़िलाफ़ मुरादिही बिज़िक्र मुतअल्लिक़िन लहू, के लफ्ज को हमल करना, कौन सा लफ्ज? फी कलाम गैर, जो कि दूसरे के कलाम में है, गैर के कलाम में है, उस लफ्ज को जो वाक़ हुआ है दूसरे कलाम, उसको हमल करना अला खिलाफ मुरादी, उसकी मुराद के बरखिलाफ हमल करना। अच्छा, वो किस तरीके से? बिजिक्र मुताल्लिक़ लही, उसका जो मुताल्लिक़ है उसको जिक्र करने के जरिए से, यानी उसके मुताल्लिक़ को जिक्र करके खिलाफ मुराद मुतकल्लिम लफ्ज को हमल किया जाएगा। ककौल ही, जिस तरीके से ये शायर का कौल है कि वकालू कद सफत मिन्ना कुलूबुन, वो कह रहे थे कि हमारे कुलूब खालिस हैं, लक सदक वलाकिन अनुदादी, के मिन्ना कुलूबुन लक सदक, वैसे वो सच्चे हैं लेकिन अनविदादी, लेकिन मेरी मोहब्बत से खाली हैं। ये आपने इसमें अगर मुलाहिजा फरमाएं तो तुल्लाब इकराम अजीज, यानी पहले साबित कर रहे हैं, फिर उसको फिर यानी सिफात हैं, फिर उसको मोहब्बत को दिल से खाली कर रहे हैं। अब ये इसी शेर पे देखिएगा, आरादू, इरादा किया कि बिसफ कुलूबिहिमुल खुलूसा अल खुलूसा, ये जो कहा कि शेर में कहा गया कि कालू का सफत मिन्ना कुलूबुन, सफत जो कहा गया ये खुलूस से मुराद है कि हमारे अंदर खुलूस है। अब इसको फहमलू, इसको उसको लफ्ज किया गया, हमल किया गया एक और इस ऐसे माना पर जो मुराद मुतकल्लिम नहीं है, अलल किस पर? अलल खुलूबे, कि खुलूस से खाली किस तरह बेजिक्र मुताल्लक ही, उसके मुताल्लक को जिक्र करना। मुताल्लक क्या? वो कौलू था, कौलू अनवुदा अनविदादी, वही मोहब्बत से खाली होना। असामिनो असामिन वाले 28वें नंबर पे इतलाफ लफ्ज मअल माना, मुहसनात मानविया में से इतलाफ लफ्ज माना है, इतलाफ लफ्ज माना। अब इतलाफ यानी लफ्ज को जोड़ना माना के साथ। अब इसकी इस्तिलाही तारीफ यह है, इतलाफ लफ्ज मअल माना, तारीफ है कि हुवा अन तकून अल अल्फाज मुवाफिकतन लिल मानी, अल्फाज मानी के साथ मुताबिकत रखते हों, यानी जुदा ना हो, तबायुन ना हो, या उनके साथ अदब में तताबुक ना हो, बल्कि मुताबिकत हो अल्फाज की मानी के साथ। नतीजे में फतुख्तारुल अल्फाजुल जज़लतो, जज़ल यानी उस्तवार मजबूत अल्फाज को इख्तियार किया जाए, वल इबारातो शदीदतो, और सख्त इबारात लाई जाएं, किसके लिए? फ़ख्र वल हमासते, किसी भी कौम या फर्द या फजीलत को फख्र करने के लिए और हमासे के लिए। व तुख्तारुल कलिमात और रकीकत, नर्म और काबिल कबूल अल्फाज को इख्तियार किया जाए, कलिमात को। वल इबारातुल लय्यनतो, लीनतो भी कहा गया है, और नरम इबारात को लाया जाए, किसके लिए? लिल गज़ वल मदह, किसी की गज़ल यानी उन अशार को कहा जाता है जिनमें आशिकाना बात की गई हो, और मद हो सताइश का कौल ही। जिस तरीके से ये कौल है शायर का कि इज़ा मा गज़बना गज़वतुन नज़रियतुन, कि जब हम नुकसान देने वालों की तरह गुस्सा करते हैं तो हतकना हिजाब शम से आओ कतर दमन, तो हम सूरज के हिजाब को चाक कर देते हैं यहां तक कि वो उससे खून निकल आता है। इज़ा मा गरना सैयद मिन कबीलतिन, के जब कबीले के बुजुर्ग को मेंबर के ऊपर बिठा जाता है, सैयद मिन जरा मेंबरिन, के मेंबर के ऊपर बिठा दिया जाता है, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो हम पर दुरूद सलाम भेजता है। इसमें तुल्लाब इकराम शेर में फख्र और हमासा के लिए सख्त और उस्तवार अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है।
वक़ौलिही वलस्तु बिनज़ार ला जानिबिल गिना इज़ा कानत अलिया फ़ी जानिबिल फ़क़्र, मैं नहीं हूँ देखने वाला गनी शख्स की जानिब जबकि अलिया बुलंद अफराज जो हैं वो फ़क्र की जानिब में। इसमें उसके बिल्कुल बरक्स से नरम अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। अत्तासिअ व इशरून अत्तफ़रीअ, 29वें नंबर पर तुल्लाब किराम अजीज है मुहस्सनात मानविया में से तफरी है। तफरी क्या है? अब तारीफ तफरी ये जान लें तुल्लाब किराम, जैसे कि किताब बाज के तमाम भी हमने और आपने मुलाहिजा फरमाया है किया है कि तफरी फर्अ से निकला, यानी असल बात चल रही है, यानी उसका जो नतीजा होता है या उसका जो बाद वाला हिस्सा होता है उसको कहा जाता है कि हुआ अन युस्बत हुक्मुन लिमुतअल्लिक अम्रिन बाद इस्बातिही लिमुतअल्लिक लहू आखरा। तफरी यह है कि साबित किया जाए कोई भी हुक्म किसी चीज के मुताल्लिक के लिए, लेकिन इसके बाद के वो हुक्म साबित है एक और मुताल्लिक के लिए भी। का कौल शायर, जिस तरीके से आप ये शायर का कौल मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि फाजत यदाह बिन्नज़ार कमा फाजत ज़ुबाह फिल वगा बिदमी, के कह रहा कि शेर में कह रहा उसके दो हाथ से मालो दौलत टपक रहे हैं जिस तरह जंग में उसकी तलवार से मेरा खून टपक रहा था। ये वका कौली ही एक और शेर है कि अहलामुकुम लिसिकामिल जहल शाफियतुन, आपके बुलूगत वाले जहालत की बीमारी का इलाज हैं। कमा दिमागुकुम तशफी मिनल कल्ब, जिस तरीके से तुम्हारे खून शिफा हैं सग से, कुत्ते से, कि ये इशारा है कि वो जो कुत्ता यानी काट लेता है तो उसको जब आपका खून लगता है, आप खून देते हैं तो वो शिफा पा लेता है। ये अस्सलासूना अल इस्तितबाओ, 30वें नंबर पर है इस्तितबा। इस्तितबा ये क्या है? तबा, तबा जो है सुलासी तबा है, यानी किसी के दुम्बाल में आना, पीछे आना, उसके नतीजे के तौर पर आना। हुवा अल वस्फ बिशैइन अला वजहिन यस्ततबिउल वस्फ बिशैइन आखर मदहन। इस्तितबा यानी एक चीज के लिए सिफत को होना इस तरह से कि वो उसके पीछे आए एक ऐसी सिफत जिसका ताल्लुक हो दूसरी चीज के साथ बतौर मद है, यानी एक ही सिफत एक चीज के लिए भी हो दूसरी चीज के लिए भी हो, चूंकि वो दूसरी चीज पहली चीज के साथ मुताल्लक है या लाजमा रखती है। यानी अन्नल इस्तितबाअ हुवल मदह अला वजहिन यस्ततबिउल मदह बिअम्रिन आखर, यह इस्तितबा यह है कि यानी किसी की सताइश करना इस तरह से कि वो सताइश के पीछे आ जाए किसी और के जरिए, किसी और चीज के जरिए से भी सताइश। का कौल ही, जिस तरीके से आप ये अगर अला अय्युहल माल लदी कद अदाबहु तसल्लफ हादा फ़िअलुहु बिल कताबे, ए वो माल जिसने तुझे नाबूद कर दिया है या तुझे आराम हो जा, रुक जा, कद अदाबहु रुक जा, उसका काम दुश्मन के लश्कर की तरह है। वका कौलिही समहुल बदीहते लैस युमसिको लफ्ज़हु फ़कअन्नमा अल्फाज़ुहु मिन मालिही, कि इसका तर्जुमा यह कि बदीहा गोई में हाथ का खुला हुआ है, बदीहा गोई में लैस युमसिको, उसके लफ्ज ऐसा लग रहा है कि उसके लफ्ज उसका माल है। इस शेर में तुल्लाब किराम अजीज खुद शेर कहना, फन शेरी और कुशादा दस्त होना की सताइश की गई है। वकील और कहा गया इन्नहु यकूनु ऐज़न फी ज़म्मे, कि ये इस्तितबा मजम्मत में भी होता है। का कौले बअज़िन फी काज़िन लम युक़बल शहादतु बिरुयत हिलालिल फित्र, जिस तरह के बाज अरब के बारे में है कौल के वो अफराद ऐसे हैं, ऐसे काजी के बारे में जिन्होंने कि जिसकी शहादत गवाही कबूल नहीं है ईद का चांद देखने के बारे में। उसके बारे में कहते हैं कि यूं कहते हैं अतरल काजी आमा, क्या तू देखता है कि काजी नाबीना है? अम तराहु यतआमा, या
تم اسے دیکھتے ہو کہ اندھا ہونے کے قریب ہے. سرق العید، اس قاضی نے جس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، عید کو چوری کر لیا. کہ ان العید اموال یتامى، جس طریقے سے یعنی عید کو اس طرح سے چوری کیا جس طریقے سے عید ایتام کا مال ہو. طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.